So I was saying that this story is written by Ruskin Bond, who is known to be a very good nature lover, I should call it. He's very enthusiastic about the nature and writes a very quite few stories about the nature and explains it very well. Right? So this is a story about the chameleon, which is a very unusual pet. Usually dog keeps dogs, cats as a pet, but this chapter is having a pet as a chameleon. So what this chapter holds for us, let us see. This is the story of Henry, our pet chameleon. Now, chameleons are in a class by themselves and are no ordinary reptiles. They are easily distinguished from their nearest relatives, the lizard, by certain outstanding feature. जो कैमेलियन है वो अपने नियरेस्ट रिलेटिव्स उसको किसका बताया जा रहा है, लिजर्ड को, एंड उसके बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, राइट? क्या फीचर्स हैं? A chameleon tongue is as long as its body. Its limbs are long and slender, and its fingers and toes resembles a parrot's claw. So जो कैमेलियन की टंग है वो लिजर्ड से रिजेंबल करती है यानी मिलती है, और उसके जो क्लॉ है यानी उसके जो पंजे हैं, जो टोज है, वो पैरट के क्लॉ से रिजेंबल करते हैं. On its head may be any of the several ornaments. Henry had a rigid crest and looked like a fireman helmet. और हेनरी के सिर के ऊपर एक क्रेस्ट था. Look at this picture. A crest था, which seems that as if the fireman has worn a helmet. Henry's eyes were his most remarkable feature. The most remarkable feature of the Henry were his eyes. They were not beautiful, but his left eye was quite independent of his right. He could move one eye without disturbing the other. So this was the unique feature of Henry, that he can use both the eyes independently, and the one eye is not dependent on the other. Are your eyes same with the Henry? If it is yes, put your thumbs up. If it isn't, put your thumbs down. Let me see how many reaction I can get. Oh, so one of the students has put the thumbs up. So his eyes are pretty independent of each other. Is that so? Gaurav, Meena, again, thumbs up or thumbs down. Your eyes are independent or both are interdependent on each other? Understand the question. If your eyes are independent, put your thumbs up. If they aren't, put your thumbs down. See, human beings' eyes are interdependent. So your thumb should be down, not the up. Again, one thumbs up. I am still receiving one thumbs up. And whose is this? Okay, it's gone now. Okay, so this was it. And let's begin with the chapter now. Henry's eyes were most remarkable feature. They were not beautiful, but his left eye was quite independent of his right. He could move one eye without disturbing the other. This we as a human beings cannot do. We cannot move our one eye without disturbing the other. Both the eyes are interdependent. We can look at one side at one time. Each eyeball bulging out of his head wobbled side to side, backward and forward. उसकी जो eyeballs थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी और इधर उधर वो पूरे टाइम देखता रहता था. This frenzied movement gave Henry a horrible squint. Now ये जो Henry का movement था ये उसको horrible squint देता था. Now what is squint? What is squint? What is squint? Squint means दोनों eyes जो है वो देख कहीं और रही है और उनके eyeballs किसी और तरफ है. So that is a medical condition known as squint.
And one look into the Henry's frightful gaze was often enough to scare the people into believing that chameleons are dangerous and poisonous reptiles. और आप अगर उसको एक बार देखोगे तो ऐसा बिल्कुल आपको लग जाएगा कि कैमलियन जो है वो बहुत ही डेंजरस रेप्टाइल है and it is poisonous as well. But actually, neither all the reptiles are poisonous nor they are dangerous. Actually, how they receive your reaction and they also react. So, your reaction to the reptiles are something which is dangerous for them, which is hostile for them, and same holds true for the animals as well. So one day, grandfather was visiting a friend when he came upon an icy scene at the garden gate. Men were shouting, hurling stone and brandishing sticks. तो एक दिन ग्रैंडफादर नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए और उनको एक सीन देखने को मिला. क्या था वो सीन कि गार्डन पर ही जैसे गार्डन गेट पर ही जैसे वो पहुंचे तो सारे आदमी जो थे वो मिलके चिल्ला रहे थे and they were sticks लिए हुए थे हाथ में और मतलब पूरे टाइम जो है they were ready to varnish with the sticks की okay they were ready to use the sticks like a weapon. The cause of the uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself on a shrub. और इन सब का कारण क्या था? इस शोर शराबे का uproar इस शोर का कारण क्या था? इस शोर का कारण ये था कि उन्होंने एक गिरगिट को देख लिया था. कैमेलियन इज गिरगिट इन हिंदी एंड उन्होंने एक गिरगिट को देख लिया था और जो उन्होंने गिरगिट को देखा था तो उसकी वजह से वो लोग जो आराम से बैठ के छोटे से श्रब पर धूप में आराम से बैठा हुआ था तो उसको देख के ये इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था कि हम इसको मार डालेंगे बिकॉज दे थिंक दैट द कैमेलियंस आर poisonous. Okay, someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. Now this is something interesting that we have all kind of people around us. So one of the persons said that chameleon can poison you even if the chameleon is 20 feet away simply by spitting at you, which is not true actually, right? The resident of the area had risen up in arms. और जितने भी वहां पर रहने वाले residents मतलब उस इलाके में रहने वाले लोग जितने भी लोग थे उन्होंने अपने बिल्कुल बाहें चढ़ा के तैयार थे कि अब इसको तो मार ही देना चाहिए. Grandfather was just in time to save the chameleon from the certain death. He brought the little reptile home. Grandfather बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे थे और अगर वो वहां पर नहीं होते तो शायद इसको मौत दे दी गई होती यानी इसको मार दिया गया होता. तो वो इस रेप्टाइल को अपने घर ले आए. That chameleon was Henry, and that was how he came to live with us. और उस कैमेलियन का नाम नरेटर ने हेनरी रखा और इस तरीके से वो इनके घर आ गया रहने के लिए. When I first visited Henry, he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with his back to me. जब मैंने पहली बार हेनरी से मिला तो उसने मुझे बहुत ही कॉन्शियसली ट्रीट किया. मैंने अभी आपसे रिएक्शन की बात की थी कि जानवरों का रिएक्शन भी अजीब होता है इंसानों को देख के और सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. हम भी सभी जानवरों को देख के बहुत ही अलग अलग रिएक्ट करते हैं. सो सेम वाज ट्रू फॉर द हेनरी एज वेल. वो बहुत ही कॉशन था राइटर को लेके और वो अपने पीछे के दोनों पैरों पर बैठा रहता था. The eye near to me would move like the beam of the searchlight until it had me well in the focus. उसकी एक आंख जो थी वो पूरे टाइम जो है वो मेरे को एनालाइज करती थी जैसे वो सर्च लाइट ऑन करके मेरे को एनालाइज करता रहता था जब तक कि मैं उसके पूरे फोकस में ना रहूं. Then it would stop and other eye would begin an independent survey of its own. और फिर एक आंख उसकी रुक जाती थी और दूसरी आंख जो है वो मेरा सर्वे करने लगती थी. For a long time, Henry trusted no one and responded to my friendliest gestures with great suspicion. बहुत लंबे समय तक हेनरी किसी पे भरोसा नहीं करता था और वो मेरे फ्रेंडली जेस्चर्स को भी यानी फ्रेंडली जो आप फ्रेंडली जेस्चर्स जैसे आप कैसे करते हो, आपका कोई फ्रेंड मिला तो उसको पीछे से हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, हेलो हाउ आर यू, है ना. सो दीज और आपके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो
डिफरेंट हो जाते हैं अपने फ्रेंड को देख के। सो जो भी फ्रेंडलीएस्ट जेस्चर्स राइटर देता था उसको भी बहुत ही सस्पिशियस निगाहों से हेनरी देखता था। टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विद माय फिंगर। इसके इस एटीट्यूड से परेशान होके मैं उसको उसकी रिब्स पे टिकल करता था, यानी गुदगुदी करने की कोशिश करता था। दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज, और ये उसको बहुत गुस्सा दिला देता था। ग्रेट रेजेस बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता था। He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled up with air, with his color changed from green to red. मतलब इसके लिए अपना गुस्सा दिखाने के लिए जानवर जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो गुस्सा ये कैसे दिखाता था, ये छोटा सा क्रिएचर था लेकिन ये अपने लंग्स में इतनी हवा भर लेता था कि ये दुगने साइज का हो जाता था और अपना कलर जो है वो ग्रीन से रेड कर देता था। He would sit up on his hind legs, swaying from side to side, hoping to overwhelm me. और अपने पीछे के दोनों पैरों पे बैठ के अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह स्वे करता था, मतलब घुमाता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तुमको डरा रहा हूं। मतलब वो लेखक को ऐसा करके डराने की कोशिश करता था। Opening his mouth very wide, he would let out an angry hiss. आप जब डर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके मुंह से चीख निकल जाती है, ऐसे ही होता है ना। सो जब आपके मुंह से चीख निकल जाए, अब जानवर तो चीख नहीं सकता, जानवर चिल्ला नहीं सकता, या वो चिल्लाता भी होगा तो हमें उसकी लैंग्वेज नहीं पता है, तो वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए क्या करता था, वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपना एक मुंह खोल के और हिस की साउंड जो रेप्टाइल्स की नॉर्मल साउंड है उसको बाहर निकालता था। बट दिस हिस थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, ही डिड नॉट बाइट। बट उसका ये जो मेरे को डराने का तरीका था इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था और वो मुझे कभी भी काटता नहीं था। Henry never, he did not bite. Henry was a harmless fellow. If I put my finger in his mouth, even during his wildest moments, he would simply wait for me to take it out again. अगर मैं बिल्कुल ही हार्मलेस क्रिएचर था, अगर मैं अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देता था, है ना, खेलते खेलते अपने हाथ की उंगलियां अगर मैं उसके मुंह में डाल देता था तो वो वेट करता रहता था कि मैं अपनी उंगलियां हटाऊं। आई सपोज ही कुड बाइट, मेरे को लगता है वो बाइट तो कर सकता था, काट तो वो सकता ही था, नो डाउट अबाउट इट, वो काट सकता था। His rigid jaw carried a number of the finely pointed teeth. उसके जो जॉ थे, उसके जो मसूड़े थे, उसमें वो टीथ की प्रेजेंस को लेखक फील कर सकता था। But Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. लेकिन हेनरी को ये बहुत अच्छी से मालूम था, उसको ये समझ थी कि उसके जो दांत है वो खाना खाने के लिए दिए गए हैं, ना कि किसी को काटने के लिए। Henry was sometimes willing to take food from my hands. कभी कभी हेनरी मेरे हाथ से भी खाना खा लेता था। This he did very swiftly, और ये वो बहुत तेजी से करता था। His tongue performed like a boomerang and always came back to him with the food, usually an insect attached to it. उसका जो टंग थी वो एक बूमरैंग की तरह ऑपरेट करती थी। बूमरैंग क्या होता है? It is an apparatus given in your word meaning section. Look at it. It is an apparatus which you can throw and it's going to come back to you. So in the same way, जो टंग थी वो निकलती थी बाहर और जल्दी से उस इंसेक्ट को या खाने को लेती थी और वापस उसके मुंह में चली जाती थी। Although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat of a riot in the nursery school down the road. It started out quite innocently. हेनरी ने हमारे घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसने नर्सरी स्कूल में, जो हमारे घर के पास में ही था। वहां पर रॉयट्स करा दिए, यानी कंफ्यूजन, नॉइजी कंफ्यूजन या दंगे कहते हैं, वो करा दिए। अब नर्सरी स्कूल में दंगे कैसे करा दिए? और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ बहुत ही इनोसेंटली, यानी उसने ये सब जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया। When the papayas in our orchard were ripe, grandmother sent a basketful to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school. तो जैसे ही हमारे घर के बगीचे में, ऑर्कार्ड इज अ बगीचा, अब बगीचे में हमारे घर में जो पपीते के पेड़ लगे हुए थे उनमें पपीते पक गए, तो ग्रैंडमदर ने उन पपीतों को तोड़वाया और नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल, उनकी फ्रेंड थी मिसेस घोष, उनको भिजवाया।
While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papayas unnoticed. और हेनरी महाराज जो थे वो अपने कीड़े मकोड़ों को ढूंढने के चक्कर में घूमने के लिए बाहर निकले थे, मतलब वो अपना खाना ढूंढने बाहर निकला था, ठीक है। और वो धीरे से उन पपीतों के बीच में चले गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर जो है मेरे को मेरा भोजन मिल सकता है। Henry went searching for the beetles and slipped among the papayas unnoticed. The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. अब जो गार्डनर था, जो माली था, उसको भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको ये जो बास्केट है वो मिसेस घोष के ऑफिस तक पहुंचानी है। तो वो उसने भी ड्यूटीफुली अपना काम किया और ये पूरा का पूरा जो खाने के टोकरी थी वो जाके मिसेस घोष के ऑफिस में रख दिया। When Mrs. Ghosh returned after making her round, she began examining and admiring the papayas, and out hopped Henry. Now, Mrs. Ghosh जो अपने usual आपने देखा होगा आपके प्रिंसिपल मैम भी जो है ना वो यूजुअल राउंड्स लेती रहती हैं, तो उसी तरीके से मिसेस घोष ने अपने मॉर्निंग के जितने भी राउंड्स थे उनको कंप्लीट किया और आके उसके बाद उन्होंने पपायास को देखना स्टार्ट किया। और जैसे ही उन्होंने पपीता को छुआ होगा वैसे ही हेनरी महाराज जो है वो प्रकट हुए पपीते के बीच से, राइट। मिसेस घोष स्क्रीम्ड. हेनरी squinted up at her, both eyes revolving furiously. अब मिसेस घोष की चीख निकल गई जैसे ही उन्होंने हेनरी को देखा। और हेनरी का क्या हुआ, हेनरी की दोनों आंखें जो है वो घूमने लगी फ्यूरियसली, यानी गुस्से में घूमने लगी। नेचुरली उसको समझ में ही नहीं आया कि मिसेस घोष उसको देख के चीख क्यों रही है। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन. मिसेस घोष दोबारा से चीखी. हेनरी कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड. अब हेनरी ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट किया। उसको भी गुस्सा आ रहा था कि ये मानव मुझे देख के क्यों चिल्ला रहा है ना। नेचुरली आपको देख के कोई चीखेगा तो आपको तो अच्छा फील नहीं होगा ना, तो उसी तरीके से हेनरी को भी फील हो रहा था। उसका कलर जो है वो ग्रीन से पहले येलो हुआ और उसके बाद वो रेड हो गया। His mouth opened as though he too would like to scream. उसने भी अपना मुंह खोला, उसने यानी हेनरी ने अपना मुंह खोला चीखने के लिए, ठीक है। An assistant teacher rushed in, took one look at the chameleon and joined in the shrieking. अब असिस्टेंट टीचर जो था, जो बाहर थे टीचर, वो भी अंदर आ गए। उन्होंने जैसे ही गिरगिट को देखा उन्होंने भी डर के मारे चीख मार दी। हेनरी was terrified. अब हेनरी जो है वो घबरा गया। He fled from the office, running down the corridor and into one of the classroom. अब हेनरी घबराहट के मारे वो ऑफिस से भाग गया। और कहाँ गया भाग के? कॉरिडोर से होता हुआ एक क्लासरूम में घुस गया। There he climbed up on a desk while the children ran in all directions, some to get away from the Henry and some to catch him. अब वो जैसे ही चढ़ के हेनरी चढ़कर भागकर आया और एक डेस्क पर चढ़कर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा सभी बच्चे जो है वो चारों दिशाओं में भागने लगे, कुछ हेनरी को पकड़ने के लिए और कुछ उससे दूर हटने के लिए। Henry finally made his exit through a window and disappeared in the garden. हेनरी जो है फाइनली खिड़की से बाहर कूद गया और बाहर गार्डन था उसमें जाके वो गायब हो गया। Grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh, but didn't mention that the chameleon was ours. Grandmother ने मिसेस घोष का पूरा इंसिडेंट सुना, लेकिन एक बात भी नहीं बोला कि ये हेनरी जो है वो हमारे ही घर का पेट है। It might have spoiled their friendship. शायद ऐसा बोलने से उनकी फ्रेंडशिप खराब हो जाती। Grandfather and I didn't think Henry would find his way back to us because the school was 3 blocks away. ग्रैंडफादर और राइटर ने ये सोचा कि हेनरी जो है वो दोबारा हमारे घर नहीं आ सकता क्योंकि स्कूल जो है वो 3 गलियां छोड़ के था। But a few days later I found him sunning himself on the garden wall. लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैंने हेनरी को अपने गार्डन की दीवार पर आराम फरमाते हुए देखा। Although he looked none the worse for his adventure, he never went abroad again. हालांकि उसका ये एडवेंचर, हेनरी के लिए तो ये पूरा एपिसोड एडवेंचर ही था कि उसको देख के लोग चीख रहे हैं, भाग रहे इधर उधर, है ना। तो ये जो एडवेंचर था
वो खराब नहीं था, लेकिन हेनरी दोबारा कभी भी गार्डन से बाहर नहीं गया. Henry spent the rest of his days in the garden where he kept the insect population well in the bounds. Henry ने अपने बाकी के सारे दिन इसी गार्डन में काट दिए और उसने इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से संभाल के रखा. बाउंड, विद इन द बाउंड्स यानी अपने कंट्रोल में रखा. Okay, so this was the chapter, and if you are having any doubt regarding this chapter, you could ask me right now if you are having any doubt. Shalja Parekh. Okay, I'm going to. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Yes, your question. Ma'am, what is the meaning of harmless fellow? Harmless fellow means जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. Harmless बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा. Fellow यानी एक ह्यूमन बीइंग के लिए हम यूज करते हैं माय फेलो क्लासमेट्स, यानी मेरे साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स. ओके मैम. और मैम सस्पिशन. सस्पिशन शक की निगाहों से. मैम रेज. रेज गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा. ओके, थैंक यू मैम. ओके बेटा. Hello, ma'am. Yes, Vivek. Ma'am, what is the meaning of ornaments? Ornaments यानी गहने. और मैम crest. क्रेस्ट, रिजिड क्रेस्ट यानी ऊपर की स्किन का भाग जो बहुत ही सख्त था. ऊपर की स्किन, क्रेस्ट स्किन. और मैं बल्गिंग. बल्जिंग बाहर निकला हुआ. ओके. और मैं वोबल्ड. वॉबल्ड इधर उधर हिलना, स्थिर नहीं रहना, इधर उधर हिलते रहना. ओके मैम. Yes, Numan. Good afternoon, beta. What is the meaning of brandishing? Come again. Brandishing. 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 Brandishing means किसी चीज को हथियार की तरह यूज करना. जैसे डंडे को हथियार की तरह यूज करना, या डस्टर को हथियार की तरह, या चौक को हथियार. So I am brandishing chalk or duster to throw it on someone. Brandishing. Okay, ma'am. Thank you.